Hi Tamanna Verma, how are you? Hi Rohit, I am good. How are you? I'm also good. So can you give brief introduction about yourself? Sure. Hi everyone. My name is Tamanna Verma, and I am from the Imaji Totoram University. It is based in Haryana, and I am from Murthal, Haryana. Other than that, I am currently working at Walmart as a software engineer too. And earlier, I've also worked at Pep Coding. So that's all. So that's one nice introduction. तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिला ये ऑफ कैंपस था या फिर ऑन कैंपस था? ये अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस थी. ओके. सो इसमें टोटल लाइक कितने राउंड्स थे टोटल? There were total 6 rounds, I guess. ओके. See, first of all, there was an MCQ round. There were 25 MCQs based on programming and core subjects of computer science. And other than that, in the second round, there were two coding questionnaires. Those coding questions can be solved if you practice lead code medium to hard level questions. All right. And coming to the next round, third round was a screening round. So there, my resume was shortlisted. So the fourth round was a technical interview, and in the technical interview, my I was asked a coding question. Other than that, we discussed core CS fundamentals, DBMS, OOPS, CS, and OS. All these subjects were discussed. The fifth round was also a technical interview. Uh, in that interview too, this interview was similar to interview number four, round number four. ओके. In round four, I was asked about uh, 4 and 5. I was asked about coding question and core subjects. So I cleared round fifth too, and then there was sixth round was a managerial round. So the managerial round at Walmart is was also very similar to the technical round only. So it can also be said as a technical round because it was so much similar to the technical interviews held. So can we So discuss all those round in detail like according to coding difficulty like कितना डिफिकल्टी था एक एक लेवल का और क्या क्या क्वेश्चंस थे और किस टाइप के क्वेश्चंस थे हर एक राउंड में? sure. I would say the coding rounds were all the questions were of the medium level, I can say. इन द टॉप. Only one question, only one question of graph was there, which was asked me in interview, technical interview, round fifth, and that was a graph-based question. तो सिर्फ वही एक हार्ड क्वेश्चन था बाकी सब जो था वो मीडियम लेवल का था. Hmm. That was also medium hard level. मीडियम टू हार्ड लेवल. ओके. और सो जो Hmm. टॉपिक्स था लगभग एरे डीपी ये सब भी पूछा गया था. Hmm. Stacks and queues was asked. ओके. Uh, One question of array was asked. One question of graph, as I said. Other than that, yeah, array was also asked. मिक्सचर ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. Yeah, there is no specific data structure that you can practice. ओके. तो अब बात करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से कि रिज्यूमे. तो सबसे पहले हम लोग कहा था कि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है ऑफ कैंपस में. तो हम लोग को रिज्यूमे कहाँ से अपना प्रिपेयर करें? See, I prepared it using overlays. Other than that, if you want to prepare resume, there are many resume building sessions. No, first of all, take guidance from that those sessions. Like you should never have a pic on your resume if you guys. And resume should be of one page itself. सो लाइक एक और साइट आता है मेरे दिमाग में नोवो रिज्यूमे. तो ऐसे ऐसे Hmm. जगह से हम लोग टेम्पलेट्स लेके और किसी का रिज्यूमे लेके रेफरेंस ले सकते हैं कि इस टाइप का बनाना है एंड देन यू कैन ऐड योर स्किल्स प्रोजेक्ट्स सीएस फंडामेंटल्स व्हाट योर अचीवमेंट्स. Yeah, of course. ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू योर कोडिंग जर्नी कि अब तो हो गया हम लोग का रिज्यूमे रेडी. तो अब आता है हम लोग का कोडिंग.
कि हम लोग कोडिंग स्टार्ट कैसे करें, कि अपना पूरा जर्नी पूरा कोडिंग का फ्रॉम जीरो टू हीरो कैसे बने। श्योर। सो गाइस, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मेरे को ऐसे लगता था कोडिंग मेरे से कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जब मैं सेकेंड ईयर तक आई, तो फर्स्ट ईयर के एंड में देयर वर समर हॉलीडेज, एंड एट दैट टाइम आई टुक अ कोर्स from Coding Ninjas. I practiced coding from there. I learned programming from there itself, introduction to Java course. Then I took a DSA course. So इससे क्या हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि DSA हो सकती है। फिर इसके बाद what I did is I I basically started with GFG2, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको डेवलपमेंट भी करनी ज़रूरी है उसके साथ-साथ। आई मीन 2 प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आई मीन वो तो कंपल्शन है, लेकिन डेवलपमेंट वैसे भी सीखो, ठीक है। So I started with development too, and coming to my तो थर्ड ईयर में मैंने पूरा सेकेंड ईयर में मैंने कोर्सेज किए, थर्ड ईयर में मैंने पूरा डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस किया। फिर फोर्थ ईयर में मैंने फिर से GFG लीड कोड, और मैंने एक पेप से कोर्स भी लिया था, पेप कोडिंग से। सो उस पर भी फोकस किया ताकि कंसिस्टेंसी रहे क्लासेस के साथ साथ, कि क्लासेस लग रही है तो मैं डेली DSA करूँ। अगर जैसे खुद करते हैं, खुद मतलब मैं खुद करती थी, डेली लीड कोड की प्रैक्टिस मेरे को करनी होती थी। अगर मैं वो भी साथ में कर रहे हो आप, DSA क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, तो उसी से ही आपका बेस बनेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इंटरव्यू के टाइम पे। मैंने फोर्थ ईयर में आके पेप कोडिंग का कोर्स इसलिए लिया था क्योंकि यूट्यूब पे कई बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी रहती हैं, तो तो उन समझ में वीडियोस नहीं में आता कि कौन सा ले। आप एक वीडियो देखने जाते हो, आप दूसरी वीडियो की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। पता नहीं तो क्या वो देखने लगते हैं। ऑप्शन था, और फोर्थ ईयर मेरे लिए बस फोर्थ ईयर बचा था। सो इट वाज द पीक टाइम जब मेरे को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने सोचा कि दिस विल नॉट वर्क एट ऑल, तो आई टुक अ कोर्स फ्रॉम पेप कोडिंग ताकि वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, मैं डेली DSA क्वेश्चंस करूँ। अदर देन दैट मैं डेली खुद से लीड कोड भी ट्राई करती थी ताकि मेरा प्रैक्टिस रहे मेरे को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि DSA नहीं हो सकता है, DSA सबसे हो सकता है, ये ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप DSA डेली करोगे ना, धीरे-धीरे, तो वो धीरे-धीरे ही होता है, एकदम से कोई नहीं अ, कर सकता। वो कहते हैं ना, बूँद-बूँद से सागर बनता है, ठीक है? तो ये डेली का एक क्वेश्चन भी ना आपका इंटरव्यू क्लियर कराएगा आफ्टर ऑल जाके। डेली बस एक क्वेश्चन भी करोगे तो। एक मिनिमल है, एक जब मन नहीं करता था तो एक डेली करती थी, पर हाँ, करना पड़ता था। जब एटलीस्ट मन वन मन करना होगा हम लोग को डेली। हाँ, मन नहीं भी करेगा तो भी करो, ठीक है? ताकि वो बाद में रिग्रेट ना रहे। डेली एक नहीं करना है, कभी कभी ऐसा हुआ कि मन नहीं कर रहा तो एक करना है। हाँ, हाँ। और इस ये करना ज़रूरी है। ये अपना मन नहीं कर रहा है, फिर भी करना पड़ता है, ठीक है? फिर भी करो, ताकि पता है वो जो रिग्रेट होता है ना कि काश मैंने कर लिया हाँ, होता उस टाइम पे, वो रिग्रेट से ज़्यादा अच्छा ये है कि अभी कर लेते हैं, ताकि वो बाद में रिग्रेट ना रहे कि काश कर लिया होता मैंने, 4th ईयर में या 3rd ईयर में या जब। और लाइफ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चांस देती है, लाइफ बहुत चांसेस देती है। तो अगर पास आउट भी हो चुके हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब के साथ-साथ भी डेली एटलीस्ट 1, 2, 3 लीड कोड क्वेश्चंस करेंगे ना, तो भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि हम लोग को वेट करना आगे तक होने का, हम लोग अपना ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ऐसा नहीं, ऐसा किसी के साथ हो गया कि बिगड़ गया या फिर कोई दिक्कत हुआ, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, वो बस टालते जाते हैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ताकि मेरा आज करेंगे कल करेंगे, और इसके चक्कर में कभी नहीं करते हैं। और एक हुँ, मोटिवेशन वाला लाइन सुन लेते हैं, आज नहीं तो कल टाइम तो है ही। तो इस अच्छा बेटर है कि तुम जितना जल्दी हो सके करो, अगर लेट हो गया हुँ, फिर भी ट्राई करो, क्योंकि हुँ, बोलते हैं हुँ। ना कि कल हमेशा तो एक नया लेट सवेरा। लेट लेट तो कभी होता ही नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। इट्स या ऑलवेज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हम लोग कोडिंग जान गए, हम लोग अपना रिज्यूमे हो गया, अब मेन आता है हम लोग का प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रोजेक्ट का तैयारी कैसे करेंगे, और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन मेजरली आज पूछा जाता है इंटरव्यू। कि प्रोजेक्ट आपको डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है। अगर आपको जैसे आपने सब कुछ अब अगर मतलब
ट्राई करके देख रखा है कि वेब डेवलपमेंट आपको अच्छी लग रही है, मशीन लर्निंग अच्छी लगती है, एंड्रॉइड अच्छी लगती है, क्या अच्छी लगती है? जो भी अच्छी लगती है या फिर जो चीज़ आपको ऐसे मन करता है ना कि वाओ! मैं ऐसी ऐप बनाऊँगा या फिर ऐसा मैं वेबसाइट बनाऊँगा, तो उसके टुवर्ड्स जाओ, मतलब वही चीज़ करो कि अगर वो चीज़ आपको मन में अच्छी लगती है ना, तो ही आप उसमें इंटरेस्टेड होगे, अकॉर्डिंग टू मी। और सोर्सेज़ बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे सोर्सेज़ हैं, लेकिन अगर अगर वही डिस्ट्रैक्शन वाला मीडियम है अगर यूट्यूब आपके लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोर्सेज़ ले लो। यूडेमी पे आप एक पिज़्ज़ा खाने से बेटर है यूडेमी पे अच्छा-सा कोर्स ले लो, ठीक है? एंजेला यू का भी वेब डेवलपमेंट कोर्स अच्छा है। अ, बहुत ही फेमस कोर्स है। हुँ, तो वो कोर्स भी अच्छा है और बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है? तो जो भी चीज़ तो हम लोग को एक्सप्लोर करना होगा अच्छे से और हाँ, और एक पसंद मैं एक बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि खुद के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप कोर्स ले रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये पैसे मैं वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप शिद्दत से उसे पढ़ोगे ना, तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा वर्थ इट होती है, हमेशा। तो मैं फिर से मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि हमको कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना है और जो पसंद है या फिर एमएल, एंड्रॉयड या वेब डेवलपमेंट, तो अगर डिस्ट्रैक्ट हुए हो तो कोर्स ले लो, कोर्स के साथ कंप्लीट करो या फिर अगर वेब डेवलपमेंट यूट्यूब से कर पा रहे हो तो यूट्यूब से करो और आराम से करो तो डेवलपमेंट भी हो जाएगा आराम से। हुँ। ओके, तो फिर एक मेन क्वेश्चन था कि हम लोग क्वेश्चन इंटरव्यूज में जनरली होते क्या हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स हाँ, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे? यही पूछा जाता है कि आपने टेक स्टैक ये यूज़ किया तो क्यों यूज़ किया? और आपका प्रोजेक्ट अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्या है? और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? और ये सब चीज़ें। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग को एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वहां जाके कुछ और एक्सप्लेन कर दें हम लोग। एक दिन पहले नहीं, जिस एक दिन दिन पहले जब आप प्रोजेक्ट हाँ, मतलब जो आप रहेगा कि आपके साथ में होती है ना, वो रिवाइज कर सकते हैं एक दिन पहले। जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि ये करेक्ट आंसर बन सकता है। ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा। एक नहीं अपने 2 मेजर प्रोजेक्ट बना के रखो, जो 2 प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, आपने पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो उनके ऊपर, वो प्रोजेक्ट। कौन से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इस टाइप के सॉल्व कर रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चंस ना। हुँ। सो नाउ अब लास्ट थिंग कि हम लोग का सब चीज हो गया, हम लोग रिज्यूमे देख लिए, कोडिंग देख लिए, प्रोजेक्ट देख लिए, देन सब्जेक्ट्स आते हैं, सीएस फंडामेंटल्स, तो उसका प्रिपरेशन फिर कहाँ से करें? मैंने गीक्स से किया था। अच्छा, गिग्स फॉर गिग्स से। हुँ। ये तो वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, सारा फंडामेंटल्स है अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तो हम लोग का पूरा चीज प्रिपेयर हो चुका है। एंड लास्ट राउंड आता है मैनेजरियल राउंड, इसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका कहाँ से प्रैक्टिस करेगा? सी मैनेजरियल भी मेरा टेक्निकल ही था ऑलमोस्ट और कोर सब्जेक्ट्स भी पूछे गए थे इसमें और कुछ सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बताते हैं और व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन यू आर। Are you hardworking or not? Are you willing to try or not? Are you willing to give your best shot or not? दिस ये बेस्ट। सब चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। आप में लाइक इफ यू आर राइट यू शुड स्पीक अबाउट इट। ये सब चीज़ें वो सब कुछ टेस्ट करते हैं। और एक एक और क्वेश्चन था कि अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर में वापस से भेज दूं, यानी कि 2022 में एडमिशन्स के लिए, तो आप अपना कौन सा वो 4 साल का मिस्टेक है फिर से रिपीट नहीं करना चाहेंगे और उसको सुधार के एक बताना चाहेंगे कि तुम ये काम अपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी नहीं करो? हाँ, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी ये नहीं सोचूँगी कि कोडिंग तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, ठीक है? मैं हमेशा अगर किसी चीज़ पे मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अगर किसी चीज़ पे पेशेंस रख के उसको सॉल्व कर रही हूँ, उस पे अपना पूरा फ़ोकस रख रही हूँ, वो चीज़ डेफ़िनिटली हो जाएगी। अभी नहीं आएगी, कभी तो होएगी, है ना? थर्ड थर्ड इज़ मैं मैं हमेशा ये ट्राई करूँगी कि अगर मैं डीएसए कर रही हूँ, किया मैंने डीएसए का एक कोर्स किया है, तो उस प्रैक्टिस को मेंटेन रखूँ मैं, ठीक है? एंड आई मेक श्योर
इन माय स्टार्टिंग ईयर्स, फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स तो बना लूँ, ठीक है? अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ तो भी बना लूँ, फोर्थ ईयर में जस्ट फोकस ऑन डीएसए। फोर्थ ईयर भी इनफ है, आप 6 टू 7 मंथ्स भी बहुत अच्छे से डिवोट कर दोगे ना, वो भी इनफ है। लेकिन ट्राई टू गिव, if you have time, you should try to give your time to DSA. दैट्स नाइस। सो एनी आउटरो, एनी एडवाइस टू आवर यंग जनरेशन जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज में आए हैं और जिसका रिजेक्शन भी हो जाता है, तो वो डर जाते हैं कि मेरा रिजेक्ट हो गया, कैसे प्रिपेयर करें? तो उनके बारे में Sure, कुछ। sure. ऐसे ऐसा कभी अपने आप को ये मत बोलना कि मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती। इफ यू विल सी ड्रीम्स ना, वो वही ड्रीम्स फिर आगे जाके सच होते हैं। और सपने देखो, सपने हमेशा पूरे होते हैं। हाँ, उन सपनों के लिए अपनी मेहनत करो, अपनी तरफ से अगर ट्राई करोगे ना, वो 100% पूरे हो जाएँगे। अगर आप पूरी मन से, पूरा अपना दिल लगा के मेहनत करोगे, अपनी तरफ से कोई वो नहीं छोड़नी कि मतलब अपनी तरफ से कभी कमी नहीं छोड़नी है। बाकी तो बाकी हो जाता है, जितना मैंने देखा है। अपने एक्सपीरियंस से तो यही बता रही हूँ। मेरे को नहीं लगता था कि टायर 3 से होने के बाद, और वो भी मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। बहुत लेट आई मीन, क्योंकि मेरे को कोडिंग में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं ना, तो वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पा रहा था फर्स्ट 2 इयर्स में तो। लेकिन हो जाता है विद आफ्टर टाइम ऑल। सब हो जाता है। हाँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती है, हमेशा। हार नहीं माननी, कभी हार नहीं माननी, और रिजेक्शंस इनफाइनाइट आएँगे। मेरे पास इनफाइनाइट आए थे। मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती, जहाँ पे अप्लाई करती थी स्टार्टिंग में तो हर जगह से रिजेक्शन, और इतना बुरा लगता था। बट ठीक है, वो उस चीज़ को अगर देखोगे तो फिर तो मतलब फिर तो नहीं कर पाती। मतलब फिर तो डेफ़िनेटली नहीं कर पाती कि हर कोई मेरे को रिजेक्ट कर रहा है इंटरव्यूज़ में, कोडिंग राउंड में। तो ये सब चीज़ रिजेक्शन, उन रिजेक्शन और उन इंटरव्यूज़ को अपना मॉक इंटरव्यू समझो कि ये मेरा मॉक इंटरव्यू था, ठीक है? वेरी गुड। और ये मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, ये मेरे मॉक इंटरव्यूज़, वो जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, वो एक फाइनल इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। जो एक फाइनल कंपनी तुम्हारे इंटरव्यूज़ दे रही होती है। वो रिजेक्शन वाले इंटरव्यू सारे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट विद अस तमन्ना वर्मा। मेरे एक थॉट याद आ गया कि रिकर्जन की तरह हम लोग का रिजेक्शन है, कि अगर बेस केस नहीं लगाओगे तो वो इनफाइनाइट लूप में जाता जाएगा। एक बेस केस श्योर, तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू हो गया, मतलब हो गया, वो रुक जाएगा। श्योर, श्योर, श्योर थैंक रोहित, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट विद अस। होप कि हम लोग को ऑडियंस को मजा आएगा ये पूरे सुन के, और कोई भी दिक्कत है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।